Welcome back, class 7th. Now today we'll be discussing chapter 6 of history. Fifth chapter is cut children. Okay, so we will start sixth chapter. Towns, traders and craft persons. This chapter is about the towns and main trading centers which were emerged during medieval period. Okay, so let us start our chapter. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it was: a temple town, an administrative town, or a commercial town, or a port town. Okay, or to name just some possibilities. Temple town means a town which is developed around the temple. An administrative town, for example, as in our country, Delhi is an administrative town. Okay, because government works from there. ओके, कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली से वर्क करती है. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. सो इन द सेम वे इन मिडीवल इंडिया द प्लेसेस विच इमर्ज एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. ओके, देन अ कमर्शियल टाउन मीन्स जहाँ से ट्रेड होता था. ठीक है, और पोर्ट टाउन. ओके, वेयर शिप्स यूज टू लोड एंड अनलोड गुड्स. So, in fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft productions. Okay, the means for your knowledge, these are given as different names, but it doesn't mean that a temple town may not be a port town. Okay, port town also may be there where a famous temple can be. Okay, so here in this map you can see various places are marked. So various towns emerged in India. For example, Ajmer was a religious center. Ajmer and Pushkar. Okay, so Ajmer and Pushkar emerged as religious town, whereas Vrindavan town emerged as pilgrimage town, जहाँ पे तीर्थ यात्रा की जाती है. Okay, then Somnath. Okay, Somnath temple town, then Tirupati temple town. Okay, then Thanjavur temple town, then तिरुवन्नामलाई. नहीं, तिरुवन्नामलाई एक्चुअली टेम्पल टाउन के साथ साथ ये पिलग्रिमेज टाउन भी था. ओके, देन कांचीपुरम. कांचीपुरम एक टेम्पल टाउन था. तो इस तरह से अलग अलग जो प्लेसेस थी अलग अलग रीजन से फेमस हुई. फॉर एग्जांपल जैसे सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम, दीज थ्री वर वेरी फेमस ट्रेड सेंटर्स. ओके, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था मिडीवल इंडिया में. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जहाँ से कि एडमिनिस्ट्रेशन होता था. ओके, सो जैसे चोला डायनेस्टी थी. ओके, चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी तंजावुर, तो तंजावुर से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. ऐसे हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है. ओके, तो दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वेयर द कैपिटल सिटीज़ आर देयर. ओके, सो तंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलाज. इट कैन बी अ वन मार्कर. ओके, एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ये. देन द पर्नियल रिवर कावेरी flows near this beautiful town. One hears the bell of the Rajrajeshwar temple built by King Rajaraja Chola. Okay, administrative center था, but it doesn't mean that कोई temple नहीं है यहाँ पे. Here temple, a famous temple, Rajrajeshwar temple, built by King Rajaraja Chola. The townspeople are all praised for its architect, Kunjar Mallan Rajaraja Peru Tanjan, who has proudly carved his name on the temple wall inside a massive शिवलिंग. शिवलिंग जो है, शिव का मंदिर है. ठीक है, वहाँ पे उसका जो नेम है उस राजराजेश्वर टेम्पल पे जो मेन आर्किटेक्ट है कुंजर मल्लन राजराजा पेरुतंचन. ओके, सो he was the architect of this famous temple. Besides the temple, there are places with mandapas or pavilion. Pavilion means where king hold court in these mandapas. ठीक है, किंग की कोर्ट लगती थी जहाँ पे, और जहाँ पे
पीपल गैदर होते थे. ओके, इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स. देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी. ओके, आर्मी जहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे ये बैरक्स भी थे, उसको बैरक्स बोलते थे. द टाउन इज़ बस्लिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी. मीन्स ग्रेन और स्पाइसेस के लिए अलग मार्केट था, क्लॉथ के लिए अलग मार्केट था, ज्वेलरी के लिए अलग मार्केट था. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. The Salia weaver of Tanjavur and the nearby town of Uraiyur are busy producing cloth for flags to be used in temple festival. ठीक है, टेम्पल फेस्टिवल में जो फ्लैग लगते थे, जो इस तरह के ट्राइंगुलर इस तरह से जो फ्लैग्स लगते थे मंदिरों में, तो वो बनाते थे बेसिकली सलिया वीवर्स. ओके, देन फाइन कॉटन फॉर किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर मासेस. तो किंग और नोबिलिटी मीन्स हायर क्लास. ओके, तो हायर क्लास के लिए और किंग के लिए तो वो बहुत ही फाइन कॉटन से वो क्लॉथ बनाते थे. एंड जो फॉर मासेस, फॉर मीन्स दूसरी जो लोग थे उनके लिए वो कोर्स कॉटन मीन्स खुरदरा कॉटन से वो क्लॉथ बनाते थे. सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द स्थापतीस और sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. Bell metal lamps वो बनाते थे ब्रॉन्ज से. ओके, मंदिर में जो इस तरह से घंटी होती है जिस पे आवाज़ करते हैं, ओके, ये और उनकी अलग से आवाज़ निकलती है, तो उसको जो स्कल्प्टर्स बनाते थे और बहुत ही सुंदर वो ब्रॉन्ज के वो आइडल्स बनाते थे, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ वो बनाते थे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर. अभी हमने बात की तंजावुर की. तंजावुर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. ठीक है, और वहाँ पे टेम्पल भी था, राजराजेश्वर टेम्पल. सो हियर तंजावुर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन. ठीक है, टेम्पल भी बहुत अच्छा था तो वो टेम्पल टाउन का भी एग्जाम्पल है. टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट्स a very important pattern of urbanization. Urbanization means the process by which cities develop. ठीक है, गांव से जो गांव डेवलप होता जाता है और वो धीरे धीरे सिटी बन जाता है. ओके, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आ जाती हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है, अर्बनाइजेशन. Temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. Why rulers used to make temples? Because they wanted to show off their devotion to various deities. जो बहुत सारे देवता थे उनको वो कितने डिवोटेड हैं, ठीक है, उनका कितना ज़्यादा डिवोशन है उनके लिए, ये उनको दिखाना होता था, डेमोन्स्ट्रेट करना होता था. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. तो वो मंदिर को भी, जो टेम्पल्स को भी है, वो ग्रांट देते थे, मीन्स लैंड देते थे और मनी देते थे, जिससे कि जो टेम्पल्स हैं वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर सकें. फीड पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्रा करने जो लोग आते थे उनको खाना खिला सकें. ओके, वहाँ पे क्या होता था, जो किंग थे वो इन टेम्पल्स को ग्रांट देते थे. ओके, एंड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन. और जो तीर्थ यात्रा करने आते थे वो भी टेम्पल को डोनेशन देते थे. आज हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी पैसा चढ़ाते हैं ना. ओके, हम भी डोनेट करके आते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक. जो वहाँ पे तंजावुर में वैक्स के जो आइडल्स बनाते थे, जो स्कल्पचर्स जो थी, तो वहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक वो लोग यूज़ में ले रहे थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है, इसमें क्या होता था, फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स. एक वैक्स की इमेज बनाते थे. देन दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले एंड एलॉय. ठीक है, क्ले और एलॉय से उसको कवर करते थे, फिर सूखने देते थे. नेक्स्ट इट वॉज हीटेड. ठीक है, उसको फिर गर्म किया जाता था और उसमें एक टाइनी होल बनाया जाता था. देन द मॉल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल. अब जो उसमें वो एक होल बनाते थे, टाइनी होल, और उसको जब गर्म करते थे तो जो अंदर जो वैक्स होता था वो ड्रेन आउट हो जाता था, मीन्स वो सारा मेल्ट होके वो बाहर आ जाता था. ओके, देन मोल्टन
metal was poured into the clay. अब उस clay की जो clay का ऊपर का जो cover है वो hard हो जाता है ना. Okay, if you make any statue of clay and let it dry, then it will get stiff. Okay, बहुत stiff हो जाएगा, वो hard हो जाएगा. तो इसी तरह से वो करते थे. और अंदर वाला जो clay के अंदर वो molten metal वो fill कर देते थे. ठीक है, मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म करते थे, ब्रोंज मेटल को, और उसको उसके अंदर डाल देते थे. ओके, एंड वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूव्ड एंड द इमेज वॉज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड. ओके, जब अंदर का जो मेटल वो सॉलिडिफाई हो जाती थी तो ऊपर से क्ले का जो है वो उसको रिमूव कर लिया जाता था, और ये कहते थे इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है, जिसमें वैक्स जो है वो लॉस्ट हो जाता था और उस वैक्स की जगह मेटल वो फिल कर देते थे. ओके, नाउ temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब मंदिर जहाँ पे है तो मंदिर के आसपास बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया रहना. ओके, लाइक प्रीस्ट, वर्कर्स, जो आर्टिजन थे, ट्रेडर थे. ओके, इन्होंने मंदिर के आसपास ही रहना शुरू कर दिया. एंड दस ग्रू टेम्पल टाउन्स. ठीक है, और इस तरह से टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए. टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भीला स्वामिन मीन्स भिलसा, उसका दूसरा नाम था विदिशा इन एमपी, एंड सोमनाथ इन गुजरात. दीज टू वर टेम्पल टाउन्स. ओके, one is Vidisha and another one is Somnath. Other important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu. Okay, these we have seen in this map in the beginning only. Kanchipuram, okay, then Madurai. Okay, pilgrimage center also slowly developed into township. Vrindavan and Tiruvannamalai, which was in Tamil Nadu, are examples of two such towns. Then Ajmer was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and later became सूबा headquarter under Mughals. ठीक है, फिर चौहान्स की कैपिटल थी पहले और फिर बाद में वो सूबा हेडक्वार्टर हो गया, मुगल्स ने बना लिया उसे. इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. ठीक है, ये रिलीजियस सेंटर्स थे. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, the celebrated Sufi saint who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient times. Okay, Pushkar was also a religious center और बहुत सारे जो pilgrims हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वहाँ पे जाना पसंद करते हैं from ancient times. Then let us talk about a network of small towns. Till now we have talked about administrative towns, temple towns, okay, and religious towns. Now we will learn that which were the small towns in medieval India. So from the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from a large villages. They usually had मंडपिका और मंडी. ओके, मंडपिका उनको कहते थे. टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल. ठीक है, मंडी अभी भी होती है जैसे. ठीक है, मंडी में जहाँ पे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उनकी जो प्रोड्यूस होती है वो उसे सेल करते हैं. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट lined with shops. Besides, there are streets for different kinds of artisans such as potters or oil pressers, sugar makers, toddy makers, smith, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell produce of distance. Places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper. So all the traders used to sell all these things there. Usually a samanta, or in later times a zamindar, built a fortified palace
or near these towns. Okay, fortified palace means एक ऐसा पैलेस जिसके चारों तरफ फोर्ट की तरह से बना हुआ होता था, और अंदर वो एक पूरा महल है, बट चारों तरफ उसके फोर्ट बना हुआ होता था, वो फोर्टिफाइड पैलेस हो गया. दे levied taxes on traders, artisan and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples. लोकल टेम्पल्स को भी टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया गया, which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day. Okay, वो राइट इंस्क्रिप्शंस पे भी लिखा हुआ है जैसे. So for today we end our discussion here. Okay.